بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب کی سینئر کنسلٹنٹ بات کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے قد کی نشوونما کا رک جانا۔ بہت سے لوگوں کی ہائٹ گروتھ رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے قد کی نشوونما نہیں ہوتی اور ان کا قد عمر کے لحاظ سے کم رہ جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں خاص ان لوگوں کے لیے یہ ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا جو لوگ اس پرابلم کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج میں بتاؤں گی کہ ہائٹ گروتھ کیوں رک جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیا اس رکی ہوئی نشوونما کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ غذا، پرہیز اور احتیاطی تدابیر اور قد کو بڑھانے کا قدرتی طبی طریقہ علاج کیا ہے۔ اب چھوٹے قد والے دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ ان کی تمام پریشانیوں کا حل پیش کر رہا ہے تاثیر دواخانہ۔ جی ناظرین، چھوٹا قد رہ جانا ایک ایسا پیچیدہ مرض بن چکا ہے جو کہ آج کل تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ رشتے میں رکاوٹ، ملازمت ملنے میں دشواری، ایونٹس میں جانے سے ہیزیٹیشن وغیرہ۔ تو میں ناظرین سب سے پہلے یہ بتاتی ہوں کہ قد چھوٹا کیوں رہ جاتا ہے، ہائٹ گروتھ کیوں رک جاتی ہے، کیا ریزن ہے۔ جب انسان کا قد عمر کے لحاظ سے گروتھ نہ کر پا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کا قد چھوٹا رہ گیا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی شخصیت میں قد کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ قد کا چھوٹا رہ جانا شخصیت میں ساری خوبصورتی کو مات دے دیتا ہے۔ انسان کی شخصیت نامکمل سی لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں قد کا چھوٹا رہ جانا ایک پیچیدہ مرض سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قد قدرتی اور پیدائشی طور پر چھوٹا رہ جاتا ہے اور اس قد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، مطلب پہلے قد کو بڑھانا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن طب میں ہونے والی ریسرچ اور تجربات نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ قد چھوٹا رہ جانا پیدائشی نہیں ہوتا، بلکہ یہ جسم کے اندرونی نظام میں خلل کے باعث بنتا ہے۔ اگر اس خلل کو دور کیا جائے تو اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ طبی اعتبار سے ہمارے جسم میں اہم گلینڈز پائے جاتے ہیں۔ اس گلینڈ کا اگلا حصہ مختلف قسم کے ہارمونز پیدا کرتا ہے جو ہمارے جسم پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہیں ہارمونز میں سے ایک ہارمون جس کا نام گروتھ ہارمون ہے، اس ہارمون کی وجہ سے جسم کی ہڈیاں بالخصوص لمبی ہڈیاں بڑھتی ہیں اور بدن کی پوری طرح نشوونما ہوتی ہے، جس سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیچوٹری گلینڈ، اگر اس گلینڈ کو کم مقدار میں پیدا کیا جائے تو اس کمی کا یہ نتیجہ ہوگا کہ قد چھوٹا رہ جائے گا۔ اگر ہارمون کی نشوونما یعنی گروتھ زیادہ ہو تو قد لمبا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ قد کے ساتھ ساتھ جسم کے وزن کا بڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسانی جسم یا شکل کو خوبصورت بنانے میں قد و قامت کے مطابق وزن کا مناسب ہونا بھی ضروری ہے۔ قد کے لحاظ سے وزن کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ اگر قد بہت زیادہ لمبا ہوگا تو بہت زیادہ پتلا دبلا جسم بدصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے موسٹلی۔ یہی وجہ ہے قد کے ساتھ ساتھ وزن کا بڑھنا بھی ضروری ہے۔ ہر انسان میں قدرتی طرح سے بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں اکثر خصوصیات وراثت میں ملتی ہیں۔ تو ناظرین، قد کا بڑھنا یا کم رہنا وراثت میں ملی ہوئی ایک یہ علامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن مناسب دیکھ بھال اور خوراک سے ہم قد اور وزن میں توازن لا کر شخصیت کو پرکشش اور جاذب نظر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین،
उम्र के लिहाज से कद बढ़ने की रफ्तार भी मुख्तलिफ होती है। जैसे कि पैदाइश के बाद बच्चा तेजी से बढ़ता है। 3 साल तक बच्चे के जिस्म की जो तवालत उमूमन उम्र की निस्फ तक पहुंच जाती है और 5 साल नशोनमा बाकायदगी से होती है, मगर 16 साल के बाद ये रफ्तार सुस्त हो जाती है। इस तरह 18 साल से लेकर 20 साल तक की जो कद की पैदाइश यानी ग्रोथ सालाना 5 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ती। 25 साल तक कद का बढ़ना बिल्कुल मौकूफ होता है। जो लोग बुलंद कामत और अपने वजन में इजाफा करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि कद बढ़ाने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत भी होती है, प्रोटीन की ज़रूरत भी होती है। प्रोटीन हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है, क्योंकि हमारे जिस्म का जो मोस्टली पार्ट होता है प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जो कि गोश्त में पाई जाती है। हमारे दांतों, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। इनकी कमी की वजह से, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से बोन जो हमारी होती हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं और जोड़ जो होते हैं जॉइंट्स वो सख्त हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि कद छोटा रह जाता है और दुबलापन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नाजरीन मैं आपको ये बताती चलूं कि कौन सी खुराक का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए मुफीद है और कौन सी खुराक नुकसानदेह है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की खुराक का हमारी बॉडी ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। ऐसी खुराक का इस्तेमाल छोटे कद वालों के लिए इंतहाई मुफीद है, जिसमें विटामिन्स, कैल्शियम्स, फाइबर्स, प्रोटीन ज्यादा मिकदार में मौजूद हो। प्रोटीन अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होने चाहिए, जो हार्मोन्स की नशोनमा और हड्डियों की मजबूती के लिए लाजिम है। प्रोटीन के हुसूल के लिए मछली, अंडा, दूध, सब्जियां, विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए नाक़िस है। इसकी कमी कमजोर हड्डियों और छोटे कद की शक्ल में रहनुमा होती हैं। जिस्म की नॉर्मल नशोनमा के लिए विटामिन डी के अलावा दूध, मिल्क शेक का मुसलसल इस्तेमाल, केले और सेब का मिल्क शेक कद बढ़ाने के लिए आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। इस तरह विटामिन्स सब्जियों और फलों में कसीर मिकदार में पाए जाते हैं और मिनरल्स में शामिल मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोराइड्स और डिफरेंट आयरन्स की नशोनमा में यह अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद अगर परहेज के बारे में हम बात करें तो तमाम खट्टी बादी अशिया मसलन पकोड़े, समोसे, अचार, चटनी, तेज मसालेजात ग़िज़ाओं से परहेज करें। इसके साथ साथ फास्ट फूड्स का इस्तेमाल तर्क कर दें। इसके बाद में नाज़रीन अगर आपकी एहतियाती तदबीर के बारे में बात करूं जो आपके कद में इजाफा कर सकते हैं या अपनी बॉडी को चुस्त और एक्टिव रखते हैं, जिस्म की नशोनमा की बहाली के लिए वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है। वर्जिश में इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि आप एक्टिविटीज़ को मोस्टली अपना मामूल बना लें, जिसमें जंपिंग या किसी चीज़ के साथ लटकना पड़े, उसके साथ 2 किलोमीटर तक पैदल अगर चलना पड़े तो ये अपने डेली रूटीन में ऐड कर लें। ज़्यादा बैठने या सोने की वजह से आप में बहुत सारी चीज़ों कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इस चीज़ से इज्तनाब करें। इन तमाम बातों पर अमल करके रुकी हुई ग्रोथ को आप दोबारा बहाल कर सकते हैं। इसके बाद नाजरीन इसके हर्बल यानी कुदरती इलाज अगर बताती चलूं, क्योंकि हम कहते हैं छोटे कद वाले अब परेशान होना छोड़ दें। तासीद वाहना पेश कर रहे हैं आपके लिए एक ग्रोथ फार्मूला जिसका नाम है मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स। अब इस कोर्स के इस्तेमाल से आप अपने कद को आसानी जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे इदारे तासीद वाहना के माहिर डॉक्टर हुक्मा साइंसदानों ने हकीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती कद को बढ़ाने का एक फार्मूला इजाद किया है,
जिसके इस्तेमाल से अब हाइट को बढ़ाना बहुत ही आसान है। ग्रोथ फार्मूले का नाम है तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स। जी नाज़रीन, तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स अब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स जो हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक मुकम्मल तौर पर एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होगा। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स खालिस और कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल तैयार किया गया है, जो कि 100% नताइज का हामिल है। इसलिए तो हम दावे के साथ कहते हैं कि छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें। माशरे में अपनी शख्सियत को पुरअसर बनाने के लिए कद बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन अब छोटे कद को बड़ा मसला ना बनाएं, क्योंकि तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स के इस्तेमाल से आप अपने कद में 4 से 6 इंच तक बआसानी इजाफा कर सकते हैं। जो अवामिल की वजह से आपका कद बढ़ना रुक गया है, तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट ग्रोथ फार्मूला इन तमाम अवामिल का मुकम्मल खात्मा करता है। मुख्तसर अरसे में ही आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। तासीर वाहना का हर्बल तरीके इलाज से तैयार करदा तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स का इस्तेमाल इन तमाम असबाब का अजाला है जिनकी बदौलत हाइट ग्रोथ रुक जाती है। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स ऐसे नेचुरल अज्जा से तैयार किया गया है जो जिस्म में तेजी से जज़ब होकर ग्रोथ को बढ़ाते हैं और आपके कद में 4 से 6 इंच तक इजाफा करते हैं। अगर आप भी छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो अब परेशान होना छोड़ दें। आज ही अपॉइंटमेंट लें, तासीर वाहना तशरीफ लाएं और अपनी परेशानी का हल बताएं। इसके अलावा आप ये कोर्स ऑर्डर पे भी मंगवा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर वाहना विजिट कीजिएगा। आज का प्रोग्राम नाजरीन को पसंद आया होगा। नए प्रोग्राम में नए मालूमात के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।